سوال یہ ہے کہ یہ طاقت اسے کس نے دی؟ ظاہر ہے یہ مافیا ہوگا، اور یہ ادنا ملازم ایک مہرا جو عوام کے سامنے ہے۔ اکبر علی نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اس کی سرپرستی یہ ایم این اے کر رہا ہے جس کا تمام تر خرچ یہ ساجد نامی اٹھا رہا ہے۔ یہ معاملہ یہیں تک نہیں رکتا، یہ چند سیاسی لوگوں کو ایک کمپنی اپنی مرضی سے چلا رہی ہے جو بظاہر کرنسی کا کام کرتی ہے۔ زمینی سطح سے اٹھایا جانے والا سارا سرمایہ یہاں تک آ کر پہنچتا ہے، اور پھر یہی لوگ ہنڈی کے ذریعے سرمایہ باہر منتقل کر رہے ہیں، اور اس کے عوض باہر سے اسلحہ اور منشیات یہاں پہنچ رہی ہے۔ اس مافیا کو چلانے والے کچھ لوگ دبئی میں ہیں اور کچھ دوسرے ممالک میں۔ انہی کے ہاتھ میں یہاں کی ڈوریں ہیں۔ وہ جب چاہیں یہاں کے حالات خراب کر دیں اور جب چاہیں امن اور سکون رہے۔ گیت یہ کہہ کر خاموش ہوگی تو اکبر علی نے پوچھا، ان کے تو دوسرے ذرائع بھی ہوں گے؟ بالکل ہیں، لیکن ابھی میں انہیں چھیڑنا نہیں چاہتی۔ میں یہاں آپ کو یہ پلان دے رہی ہوں کہ یہی منی ایکسچینج والی کمپنی درمیانی پل کا کام دے رہی ہے۔ یہیں سے اگر ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تو چھپے ہوئے لوگ سامنے آتے چلے جائیں گے جو اس سارے دھندے میں ملوث ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو پیغام دینا ہے۔ گیت نے جذباتی انداز میں اپنی بات کہی۔ گیت، یہ وقتی طور پر ہوگا، یہ پھر شروع ہو جائے گا جب تک عوام خود جوا کھیلنا نہیں چھوڑے گی۔ جنید نے اپنی رائے دی۔ زمینی سطح پر اگر جوا کھیلنے کے مواقع نہیں رہیں گے تو کم از کم یہ کم ضرور ہو جائے گا، لیکن اس سے ہمیں طاقت مل جائے گی۔ سلمان نے کہا، بے شک ایسا ہی ہے، لیکن آپ ایک خوف مسلط کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی کوشش سے غرض ہے، نتیجہ ہم خدا پر چھوڑتے ہیں۔ ہدایت تو اس کے ہاتھ میں ہے نا؟ فہیم نے تائید کی۔ پلان کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو گیت نے اسکرین کی مدد سے پورا پلان اور اس کی تمام جزیات بتا دی۔ کچھ سوال جواب ہوئے، سب متفق ہونے کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داری لے لی۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ تبھی جنید نے ایک بیگ سے کافی سارے سیل فون نکال کر میز پر رکھ دیے، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، یہ عام سے دکھائی دینے والے سیل فون عام نہیں بلکہ خاص ہیں۔ میں نے اس سیل فون میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں، یہ کسی جگہ بھی ٹریس نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک بٹن دبانے سے یہ عام سیل فون بن جائے گا۔ واو، امیزنگ! بلیک مارکیٹ میں ابھی اس کی بازگشت تو ہے لیکن آیا نہیں۔ سلمان نے حیرت سے کہا، میری پٹاری میں اور بھی بہت کچھ ہے جو تمہیں بلیک مارکیٹ میں بھی نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ میرے ذہن میں بہت کچھ ہے۔ اب فہیم اور زویا سے مل کر کوشش کروں گا۔ فی الحال یہ تو کریں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو سب تیار ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ جانے لگا تو سلمان نے تیزی سے کہا، نہیں اب ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے کس قدر معمولی سے ہے۔ یہاں رہ کر آپ ہمیں پل پل محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بس دیکھتے جائیں، زویا نے کہا تو وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ زویا کو وہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد جنید، اکبر علی اور مہوش ایک گاڑی میں وہاں سے نکل چکے تھے۔ زویا اسی اسکرین پر لیپ ٹاپ کی چھبی دکھانے لگی جہاں گیت نے مناظر دکھائے تھے۔ ان کی تصویر تو میں نہیں دیکھ پا رہا تھا مگر ان کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ ان کی حرکات و سکنات چھوٹے چھوٹے رنگین دائروں کی صورت میں سامنے اسکرین پر واضح تھے۔ جنید، اکبر علی اور مہوش اس کئی منزلہ عمارت کے سامنے جا رکے جہاں اس منی ایکسچینج کا مرکزی آفس تھا۔ وہ تینوں لفٹ کے ذریعے اس فلور پر چلے گئے۔ لفٹ سے نکلتے ہی ان کی تلاشی لی گئی۔ ان کے پاس سے کوئی ہتھیار نہیں نکلا۔ سامنے ہی ڈیسک تھا، وہاں ایک خوبصورت لڑکی ان کی طرف متوجہ تھی۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ ہمیں یہاں کے ذمہ دار بندے سے ملواؤ، ہمیں معلوم ہے کہ مالک یہاں نہیں ہوتا۔ جنید نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس پر لڑکی نے حیرت اور پریشانی میں ان تینوں کو دیکھا، پھر فون پر کسی سے وہی بات دہرا دی جو انہوں نے کی تھی۔ آپ ذرا انتظار کریں، رضوی صاحب بزی ہیں، وہ ابھی آپ سے ملتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہیں فون پر بات کرا دو۔
जुनैद ने उकताए हुए अंदाज में कहा तो उसने फोन मिलाकर फिर बात की और रिसीवर इसकी जानिब बढ़ा दिया। हेलो, कौन बात करना चाहता है? रिजवी ने पूछा। मैं जुनैद हूं। तुम्हें नाम से नहीं काम से गरज होनी चाहिए। एक 10 करोड़ की डील है। करना चाहते हैं तो अभी मिल लो, वरना हम किसी दूसरे से मिल लेते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है। कैसी डील? रिजवी ने पूछा। क्या फोन पर ही बात करोगे या सामने भी आओगे? अगर तुम्हारा रवैया ऐसा है तो हम चले जाते हैं। जुनैद ने गुस्से भरे लहजे में कहा तो दूसरी तरफ से कहा गया, नहीं नहीं, आप आओ, मैं इन्हें कहता हूं वो लेके आते हैं। एक बार फिर उनकी तलाशी ली गई और उन्हें रिजवी के ऑफिस में पहुंचा दिया। वो आधे से ज्यादा गंजे सर वाला था। मोटे नक्श और फर्मा बायल ढीली पतलून उसने गैलत से बांधी हुई थी। उसने कारोबारी मुस्कुराहट से उनकी तरफ देखकर पूछा, क्या है 10 करोड़ की डील? महविश ने अपना लैपटॉप उसके सामने रख दिया। तब तक जुनैद ने कहा, ब्लैक मनी 10 करोड़ है। बर्तानिया या फ्रांस में देनी है। क्या लोगे? और हाँ, रकम कहीं से लेनी होगी। 1 करोड़ सीधा हिसाब है। रिजवी ने संजीदगी से कहा, डन। करेंसी कैसे लोगे? अपने बंदे भेजोगे या हम इधर ठहरें? दूसरी तरफ रकम कब पहुंचेगी? जुनैद ने तेजी से कहा, रकम कहां से लेनी है? होटल फाइन से। वहां हमारा एक बंदा मौजूद है, यहां से नजदीक ही है। ओके, आप उनके साथ चले जाएं और रकम दे दें। रकम मिलते ही 10 मिनट बाद दूसरी तरफ पहुंच जाएगी। उधर का पता क्या है? मैं बताती हूँ, महविश ने कहा और तेजी से लैपटॉप खोल लिया। जरा सी देर बाद उसने पूछा, आपका ईमेल प्लीज, ताकि मैं सारी मालूमात आपको दे दूं। रिजवी ने ईमेल बता दिया। महविश ने तेजी से लैपटॉप पर काम करती रही। फिर 2 मिनट बाद बोली, आप देख लें, मालूमात आपको मिल गई। रिजवी ने अपना लैपटॉप पर निगाह दौड़ाई, मेल देखी और कंफर्म कर दी। वो तीनों उठ गए। मैं 1 घंटे तक आपके लोगों का होटल फाइन में इंतजार करूंगा, जुनैद ने कहा और चल दिया। बाकी दोनों भी उसके पीछे चल दिए। महविश ने वहां का सारी मालूमात अपने पास ट्रांसफर कर ली थी। दूसरी तरफ सलमान, फहीम और गीत थे। उनका रुख नेपियर रोड की तरफ था, जहां वो मिनी एक्सचेंज का मरकजी दफ्तर था। उसके साथ मुल्हिका एक दूसरी इमारत थी जो 2 मंजिला थी, जहां सारा काला धन लिया और दिया जाता था। वो इमारत पूरी तरह रोशन थी। अगर गीत ने इस इमारत की जुजियात न बताई होती तो पहली निगाह में यही लगता कि इजाजत के बगैर इस इमारत में घुसना नामुमकिन था। फहीम गाड़ी में बैठा रहा। सलमान बड़े एतमाद से नीचे उतरा और उसने वो फर्जी नाम बताया जो वो कंप्यूटर से देख चुके थे। जरूरी कार्रवाई और तलाशी के बाद इन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। उनकी कार वहीं रोक ली गई थी, इसलिए वो तीनों पैदल चलते हुए उस दफ्तर तक जा पहुंचे। उन्हें मालूम था कि इजाज सदीकी अपने दफ्तर में है, जो सारी रकम का हिसाब किताब रखता है। फहीम इसका सब कुछ हैक कर चुका था। अमले के बाकी लोग उसके दफ्तर से मुल्हका एक हॉल में थे। इस वक्त वहां सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। जी बोलें, आप लोग क्या चाहते हैं? सदीकी ने तेजी से उकताए हुए लहजे में यूं कहा जैसे उसके पास वक्त ना हो। हम यहां से रकम लूटने आए हैं। रोक सकते हो तो रोक लो, गीत ने धीमे मगर सर्द लहजे में कहा। तो सदीकी ने उनकी तरफ यूं देखने लगा जैसे वो दोनों किसी दूसरी जहां की महलूक हो। फिर मुस्कुराते हुए बोला, पागल हो, ये किसी दूसरी जहां के महलूक? 1 मिनट से पहले तुम पकड़े जाओगे। ये कहते हुए उसने पांव के नीचे लगा अलार्म का बटन दबाया। कहीं भी कुछ नहीं हुआ तो वो एकदम से परेशान हो गया। तुम्हारा यहाँ का सारा निजाम हम जैम कर चुके हैं। तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। सामने देखो, बाहर लगे कैमरे और तुम्हारी ये स्क्रीन तारीख है। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाहर वालों के लिए अंदर सब सुकून है। ये कहते हुए सलमान ने उसके दराज में पड़ा पिस्टल निकाला, उसका मैगजीन देखा, फिर सदीकी पर फायर करने के लिए सीधा किया। तुम्हारा पिस्टल और अब तुम कहो क्या कहते हो?
मुझे मत मारो, तुम जो चाहे यहाँ से ले जा सकते हो और मैं कोई मुज़ाहमत नहीं करता। सदीकी ने दहशतज़दा लहजे में कहा। उस दीवार गिर अलमारी का नंबर भी नहीं दोगे जिसमें करेंसी मौजूद है? सलेमान ने कहा, ये लो। उसने सामने रखे हुए कागज पर नंबर लिख दिया। तब सलेमान ने उसे गोली मारने की बजाय पिस्टल का दस्ता जोर से उसके सर पर दे मारा। वो पहले ही दहशतज़दा था, अगले ही लम्हे वो ढेर हो गया। गीत और सलेमान दोनों मुख्तात अंदाज में बाहर की जानिब लपके। सामने दो गार्ड पहरा दे रहे थे। दोनों को गीत ने निशाने पर लिया तो सलेमान ने पलट के कहा। उसने दीवार गिर अलमारी को खोला तो अंदर सीढ़ियां उतर रही थी। उसने पहले मेज से उठाई हुई कुछ चीजें अंदर फेंकी। वो देखना चाहता था कि लेजर शुआएं खत्म हो गई या नहीं। लेजर शुआएं खत्म हो चुकी थी। वो तेजी से नीचे पहुंचा। हर तरफ करेंसी नोट की गड्डियां ऊपर से नीचे तक लगी हुई थी। सलमान तेजी से करेंसी नोटों को बैग में भरने लगा। इस दौरान जुनैद, अकबर, महविश वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही अंदर से इन्हें कहा गया कि रकम के थैले तैयार हैं, इसी वक्त उन्होंने अपने हथियार संभाले और गेट पर जा पहुंचे। उन्हें देखते ही सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए थे। इससे पहले कि वो जाकर बात करते, उन्होंने साइलेंसर लगे पिस्टल से फायर कर दिए। ठक ठक की आवाज आई और वहां मौजूद बंदे जमीन पर आ रहे। वो तेजी से अंदर चले गए। उनकी राह में जो भी आया वो उन्हें ढेर करते गए, यहां तक कि वो सदीकी के कमरे तक जा पहुंचे। हाल में मौजूद लोग बाहर की सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर थे। वो जैसे ही हाल में गए तब उन्हें पता चला कि बाहर तो सूरत हाल ही बदल चुकी है। एक बूढ़े आदमी ने फौरन हाथ अपने सर पर रख लिए। बाकियों ने भी इसकी तकलीद की। महविश ने इन्हें एक जगह इकट्ठे हो जाने को कहा और कोने में लग गए। इस दौरान वो अपने बैग से स्प्रे की बोतल निकाल चुकी थी। उसने वक्फे वक्फे से 2-3 बार इन पर छिड़का तो वो बेहोश होते चले गए। उनकी तरफ से मुतमईन होने के बाद वो सदीकी के कमरे में आए। वो अभी तक बेहोश था। महविश ने उसके मुंह पर छिड़काव कर दिया। जुनैद, अकबर नीचे जा चुके थे, जबकि गीत और महविश बाहर निखार रखे हुए थी। जैसे ही बंगले का रास्ता साफ हो चुका, फिर फहीम अपनी 4 व्हील अंदर लेकर आ गया। जरा सी देर में वो 16 थैले उन्होंने 4 व्हील में रखे और बाहर आ गए। जुनैद और महविश दूसरी कार में बैठे। वो सब वहां से निकल पड़े। नेपियर रोड से क्लिफ्टन तक का रास्ता ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे या पौन घंटे का था। अगर इसमें ट्रैफिक न हो तो वो बआसानी इतने वक्त में पहुंच सकते थे। मैं देख रहा था कि वो वहां से निकले और चल पड़े थे। दोनों गाड़ियां दो नुक्तों की सूरत में हरकत कर रही थीं। मेरे बदन में सनसनी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। यही रास्ता उनके लिए खतरनाक था। जबकि वो आगे पीछे गाड़ियां दौड़ाते हुए आ रहे थे, यहां तक कि वो ट्रैफिक इशारे पर रुक भी जाते थे। जोया ने शायद मेरी तवज्जो हटाने के लिए कहा, इन दोनों इमारतों का आपस में गहरा ताल्लुक है सिक्योरिटी के लिहाज से। अगर एक में कोई गड़बड़ होती है तो दूसरी में फौरन पता चल जाता है। इसलिए इन्हें दोनों तरफ जाना पड़ा। इस वक्त तो दोनों इमारतें फहीम की मर्जी पर हैं। वो जैसे ही इधर यहां पहुंचेंगे तब उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। मतलब उनका सारा निजाम मामूल के मुताबिक काम करेगा। तब उन्हें पता चलेगा कि क्या हो गया है। उनके बताने पर मैंने एक तवील सांस ली। सामने स्क्रीन से पता चल रहा था कि अब वो तेजी से करीब पहुंच रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद वो सब उसी कमरे में थे और सारी बात बता चुके थे। तो ये मिशन चंद घंटों में खत्म हो गया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो अकबर ने तेजी से कहा, नहीं, ये मिशन अब शुरू हुआ है। 1 घंटे बाद जब इससे जुड़े सारे लोगों को पता चलेगा, एक एक करके वो सब हमारे जाल में आते चले जाएंगे। फिर यहां बैठकर हम उनसे खेलेंगे। मैं रकम तहखाने में फेंक आऊं। आओ सब मेरी हेल्प करो, सलेमान ने कहा और वो सब बाहर चले गए। मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। उन सब की सोच वही थी जो मेरी थी। रोही ने इन्हें हीरा बना दिया था। नया पैराग्राफ। जसपाल सिंह जालिंदर के उसी बाईपास रोड पर मौजूद
उसी मोटेल के सामने खड़ा था जहां वो और हरप्रीत एक रात गुजार चुके। उसने मुहतात अंदाज में इधर उधर देखा और इस मोटेल की तरफ बढ़ गया। वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ तो सामने हरप्रीत कुंवर बैठी थी। हरप्रीत उसी की जानिब देख रही थी। उसने हल्के सब्ज रंग का कढ़ाई वाला सूट पहना हुआ था, कसकर बांधी की चोटी, हल्का हल्का मेकअप, पैरों में उसी रंग का खुस्सा पहने वो पंजाबन उसी की राह तक रही थी। उसे देखते ही हरप्रीत के चेहरे पर खुशी के दिए रोशन हो गए। वो वहां पर किसी की भी परवाह न करते हुए उठी और वालहाना अंदाज में उसके गले लग गई। उसका बदन होले होले लर्ज रहा था। जसपाल ने इसे खुद से अलग करते हुए पूछा, फुप्पो कैसी है? अनुजीत कैसा है? दोनों ही ठीक हैं और तुझे बड़ा याद करते हैं। ये कहते हुए वो बैठ गई तो वो भी उसके सामने वाली मेज पर बैठ गया। तभी वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तेरी सबसे बुरी आदत यह है कि तुम अपने बारे में नहीं बताते हो कि तुम कहाँ हो, कैसे हो। कोई राब्ता नहीं होता, कोई पता नहीं होता तुम्हारा। इस पर जसपाल बिल्कुल खामोश रहा और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहा। हरप्रीत चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही, फिर गुस्से में बोली, मेरी बात का जवाब दो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। क्या मैं बकबक कर रही हूं? ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? मैं ये देख रहा हूं तुम अभी से बीवी बन गई हो। यार, जब तक लावा नहीं लगती, शादी नहीं होती, कम से कम दोस्त बनकर तो रहो। बहुत दोस्त हैं तेरी, मैं जानती हूं। अभी जो तुझे छोड़कर गई है, कौन थी वो? उसने गुस्से भरे लहजे में तेजी से पूछा। तुम देख रही थी? उसने हैरत से पूछा। मैं तो 2 घंटे सड़क पर नजरें जमाए हुए हूं, हरप्रीत ने तेजी से कहा। तो जसपाल को उस पर बड़ा प्यार आया। रुनीत कुंवर थी। वो तुम्हें भी इससे दोस्ती करना होगी। तुझे इससे मिलाऊंगा। बड़े काम की चीज है, हीरा है वो, हीरा। जसपाल ने कहा तो हरप्रीत मुंह बसूरते हुए बोली, वो वाकई ऐसी ही चीज है या मुझे चढ़ा रहे हो? वो ऐसी ही है, जब तुम मिलोगी तो मान जाओगी। ये जो यहाँ जालिंदर में 3-4 जगहों का इंतजाम किया है हमने, क्या इन्हीं लोगों के लिए था? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने वहां? वो कहते कहते रुक गई। बिल्कुल, इन्हीं लोगों ने ठहरना है वहां। अपने लोग हैं। खैर, कुछ खिलाओ पिलाओगी या भूखे ही रखोगी? जसपाल ने कहा तो उसने मुस्कुराते हुए बेटे को इशारा कर दिया। वो खाने की और ढेर सारी बातें करने के लिए वहां से उठे और ओगी पिंड की तरफ चल दिए। हरप्रीत कार ड्राइव कर रही थी। जैसे ही वो बाईपास से ओगी पिंड की जानिब बढ़े, जसपाल ने गहरी संजीदगी से पूछा, हरप्रीत, क्या अब भी तुम्हारा खालिसा जत्थे के साथ राब्ता है? हाँ है। उनसे राब्ता कैसे टूट सकता है? पर तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने हैरत से पूछा। मैं उनसे मिलना चाहता हूं, किसी ऐसे बंदे से जो जिम्मेदार हो और किसी भी किस्म का फैसला कर सकता हो। जसपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जसपाल, सच पूछो ना, वो तुमसे खुद मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में साफ बता दिया हुआ है। वो सब कुछ मैं जानती हूं। मुझे नहीं पता तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो, मगर मुझे मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे मिलने से उनकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। हरप्रीत के लहजे में काफी हद तक जोश था। हरप्रीत, मैं अब एक तवील अरसे तक इधर रहना चाहता हूं, सिर्फ धर्म की सेवा के लिए। मुझे नहीं मालूम मैं कब पूरा हो जाऊंगा। एक सिंह की शान यही है कि वो धर्म की खातिर लड़ता रहे। जसपाल ने जैसे दूर कहीं हलाव में घूरते हुए कहा। और मेरे साथ शादी? हरप्रीत ने कहा, तुम जानती हो कि एक के साथ ही हो सकती है। शादी कर लूं या सेवा कर लूं? उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो हरप्रीत उसकी बात समझते हुए खिलखिला कर हंस दी। ओगी पिंड पहुंचते हुए 19 पहर हो चुकी थी। कुलजीत कुंवर उनकी राह तक रही थी। अनुजीत भी घर पर था। बंता सिंह और ज्योति भी थी। शाम तक वो ड्राइंग रूम में बैठा उनसे गपशप करता रहा। शाम ढल चुकी थी तो कुलजीत कुंवर ने ज्योति को डांटते हुए कहा, ए ज्योति, कुछ अक्ल कर, यहां बैठी है, कुछ खाने को बना। बेबे, ज्योति को मैंने रोका है, हम खाना बाहर खाएंगे।
हमारे साथ अनुजीत वीर भी जाएगा। हरप्रीत ने कहा। तो मैंने उसकी तरफ देखा। बिलाशुबा उसने राब्ते करके तय कर लिया था। चल फिर ठीक है, कर तू अपने जसपाल वीर से बातें, मैं तो चली। कुलजीत कंवर उठकर अंदर चली गई। तब जसपाल ने जेब से काफी सारे नोट निकालकर आधे आधे किए, एक हाथ से बंता सिंह को और दूसरी हाथ से ज्योति को देते हुए बोला, मैं तुम दोनों के लिए कोई शय नहीं ला सका, तुम अपनी पसंद से ले आना। जसपाल वीरे, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी हर जरूरत पूरी हो जाती है। ज्योति ने जल्दी से कहा। और रख लो, पकड़ो। दोनों ने वो नोट ले लिए और खुशी खुशी वहां से चले गए। जसपाल काफी देर तक मसरूर वहीं बैठा रहा। छोटी छोटी खुशियां बंदे को कितना सरूर देती हैं। रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। जसपाल फ्रेश होकर कार में आ बैठा। उसके साथ पहलों में हरप्रीत थी। अनुजीत पहले ही निकल चुका था। उनका रुख रसूलपुर कलां की जानब था। तमाम रास्ते हरप्रीत कंवर खामोश रही। जैसे ही वो रसूलपुर कलां के करीब पहुंचे तब उसके लब वाह हुए। यहाँ सरदार वीर सिंह है। इस वक्त खालसा जत्था उसके हाथ में है। यही वो बंदा है जो बहुत अरसे से तुम्हारे साथ मिलना चाहता है। बहुत ठंडा और तंजीमी बंदा है। बहुत सेवा की उसने धर्म की। चल देखते हैं, जसपाल ने धीरे से कहा और सामने सड़क पर देखने लगा। गांव में वो सबसे बड़ी पीले रंग की हवेली थी। हवेली के सामने काफी सारी जमीन खाली थी। वहां एक तरफ काफी सारे लोग चारपाइयां डालकर बैठे हुए गपशप कर रहे थे। आम आदमी के लिए वो गपशप थी, लेकिन जसपाल समझ गया था कि वो सब सिक्योरिटी के लिए बैठे हुए हैं। उनके देखने का अंदाज ही ऐसा था। उन्होंने कार पोर्च में ले जाकर रोकी तो सरदार वीर सिंह बड़े दरवाजे से बाहर आ गया। वो उधेड़ उम्र, लंबे कद और भारी जुस्से वाला ग्रांडेल शख्स था। उसने गहरे नीले रंग की शलवार कमीज और जाफरानी पगड़ी बांधी हुई थी। उसे इतला मिल चुकी थी कि मेहमान आ गए हैं। सत श्री अकाल सरदार जसपाल सिंह जी, जी आया नो। उसे दोनों बाजू फैलाकर उसका इस्तकबाल किया और फिर उसे गले लगा लिया। सत श्री अकाल सरदार वीर सिंह जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जसपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आओ तशरीफ ले आओ, वीर सिंह ने कहा और फिर हरप्रीत के सर पर हाथ फेरते हुए उसे दुआएं देने लगा। वो तीनों आगे पीछे ड्राइंग रूम में जा पहुंचे। वहां दो नौजवान मजीद बैठे हुए थे। वीर सिंह ने बैठते ही इनसे तारुफ कराया। ये दोनों मेरे सगे बेटे तो नहीं, लेकिन इन्होंने बेटों से बढ़कर मेरी सेवा की है। सरदार जोगिंदर सिंह और सरदार सुरिंदर सिंह, ये दोनों खालसा जत्था के सरहेल हैं, उन्होंने कहा और दोनों ने हाथ जोड़कर उसे फतह बुलाई। तब वो गहरी संजीदगी से बोला। सरदार जी, हरप्रीत ने मुझे पहले भी कहा था कि मैं आपसे मिल लूं, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं मिलना चाहता था, और सच पूछे तो मेरा यहां रहने का इरादा ही नहीं था। मैंने जिनसे इंतकाम लेना था वो ले लिया। अपनी जमीन जायदाद वापस ले ली जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा मेरे पास कनाडा में है। मतलब मुझे कोई मौशी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मैं यहां रहना चाहता हूं। अपने धर्म की सेवा करना चाहता हूं, जैसी भी हो सके। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर सकता हूं। पुत्र, ये जो तेरे साथ बीती है ना, यहां के हर घर के साथ वही बीती है। किसी का बाप, किसी का बेटा, भाई बहन जिंदा जलाए गए हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद ये मुल्क अब हमारे लिए अजनबी है। अब हर सिख ये सोच रहा है कि हम 47 में आजाद हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं। 84 में हमें ये पूरी तरह जता दिया गया कि हम इस मुल्क में गुलाम हैं। पहले अंग्रेजों के और अब हिंदू के हैं। अब ये नई बात नहीं है। ये रोना तो अब तक चला आया है, लेकिन खौफनाक बात सिख पंथ के लिए ये है कि हम अपनी आइंदा नस्लों को क्या देकर जा रहे हैं। गुलामी का खौफनाक एहसास, शर्मनाक इतिहास। सरदार वीर सिंह ने रूहान सा होते हुए कहा। ये कहानियां मैंने बहुत सुन ली, अब आगे की देखें, क्या करना है हमें।
क्या करना होगा हमें? जसपाल ने मतानत से पूछा। हालिस्तान, यही हमारी मंजिल है। अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाए तो कम से कम अपनी नस्लों को ये जद्दोजहद तो देकर जा सकते हैं। किसी कामयाबी की कोई बुनियाद तो हो जिस पर हमारी नस्लें फख्र कर सकें। सरदार वीर सिंह ने जोश भरे लहजे में कहा तो जोगिंदर सिंह बोला, हमारे बंदे टाडा के तहत अंदर हैं। कोई कहीं पर कत्ल हो जाते हैं, सबसे पहले हमारे बंदों से तफ्तीश शुरू होती है, कोई वारदात भी हो। दुनिया बहुत आगे निकल गई है सरदार जी। अब जंग सिर्फ गोली चलाने से नहीं जीती जा सकती। लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करना होगा। उसके लिए बड़े मैदान हैं। मैं मानता हूं कि ताकत के बिना कुछ नहीं हो सकता, मगर जितने भी महाज हैं उन पर हमें लड़ना होगा। वो मैदान चाहे मीडिया का है, तालीम का, लोगों को शऊर देने का है। उन्हें ये बताना होगा कि आजादी उनका हक है। जसपाल ने गहरी संजीदगी से कहा तो सरदार वीर सिंह बोला, मेरी तो उम्र गुजर गई है पुत्र। अब जो करना है तुम्ही लोगों ने करना है। जो तुम लोगों की अक्ल समझ में आए तो फिर आप मुझ पर यकीन रखें। बाकी वाह गुरु जाने क्या होता है। जसपाल ने हतमी लहजे में कहा, मैं चाहता हूं जत्थे को नया खून मिले, डर और खौफ से निकलकर अपनी बात मनवाने की जुर्रत पैदा हो। वीर सिंह ने कहा तो जसपाल मुस्कुराते हुए बोला, इस वक्त जत्थे के मामलात कौन देख रहा है? जोगिंदर सिंह। ये वीर सिंह ने उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, ठीक है, ये सरदारी रही उसी के पास, लेकिन इसका काम किए गए फैसलों पर अमल दरामद करवाना है। ये फैसला कौन करेंगे? आप बेहतर समझते हैं। जसपाल ने कहा, मैं तेरी बात समझ गया हूं, ऐसे ही होगा। वीर सिंह ने जोश से कहा, बस तो फिर आप कल से ही धर्म सेवा के लिए उठें। अपने इलाके में जितने भी गुरुद्वारे आते हैं उन पर जाके माथा टेकें, उनके मसाइल मालूम करें। बाकी काम हमारा है। क्यों जोगिंदर सिंह जी? जसपाल ने उसकी तरफ देखकर पूछा। जैसे कहो भाई जी, मैं हाजिर हूं। वो मुस्कुराते हुए बोला, आओ बरसादे शखें। वीर सिंह ने कहा और उठ गया। जसपाल ने अपनी सोच के मुताबिक अमल शुरू कर दिया था। रात के जब वो एक साथ वापस आए तो ड्राइंग रूम में अनुजीत का पहला सवाल ही यही था, अब क्या करना होगा? मुझे जत्थे के साथ मुंसलिक 2-4 नौजवान मिला दो, समझदार हो, दलेर हो और किसी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, फिर देखो क्या होता है। जसपाल ने जवाब दिया तो अनुजीत ने कहा, मैं कल ही ऐसे नौजवान तलाश कर लूंगा। मैं अब चलता हूं, सुबह मुझे जालंधर जाना होगा। ये कहकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जसपाल अपने कमरे में जाकर इजी हुआ और अभी उसने बेड पर से बैठा अपना लैपटॉप खोल ही रहा था कि हरप्रीत छोटे से ट्रे में चाय के मग रखे आ गई। उसने ट्रे साइड टेबल पर रखे पूछता, जस्सी, आखिर तुम इन नौजवानों का क्या करना चाहते हो? इस पर जसपाल ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से अपनी तरफ खींचा। वो सीधी इसके ऊपर आ गिरी। उसने अपनी नाक हरप्रीत की नाक से रगड़ते हुए कहा, हरप्रीत, ऐसी बातें ठीक नहीं होती हैं प्रीतो। अब हम हैं और हमारी बातें ही होंगी। ये कहकर उसने लैपटॉप एक तरफ रखा और उसके सामने होकर बैठ गया। वो दोनों चाय पीने लगे। वो इसे समझाने लगा कि कल उसने क्या करना है। अगले दिन सूरज अभी निकला नहीं था। जसपाल ने गाड़ी ली तो हरप्रीत भी उसके साथ आ बैठी। वो जालंधर की जानिब चल दिए। जसपाल का सिंधु से राब्ता था। वो और उसके साथी मुख्तलिफ जगहों पर ठहरे हुए थे। आधे 1 घंटे बाद वो उनके पास पहुंच गया। सिंधु पूरी तरह तैयार बैठा था। उसे देखते ही बोला, यार, मैं तेरे कहने पर यहां आ तो गया हूं और मैं समझता हूं कि यहां रहने से मैं बहुत जल्द हालात पर काबू पा लूंगा, लेकिन यहां फौरी तौर पर पैसा। सिंधु ने कहा तो जसपाल ने इसकी बात काटते हुए कहा, पैसा बहुत है।
آج ہی تمہیں بہت زیادہ رقم مل جائے گی، اس کی فکر چھوڑو۔ یہ بتا، پروفیسر کے قاتلوں کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے چندی گڑھ میں موجود اپنے سارے ذرائع اس کام پر لگا دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔